Very good morning, students. Today, in our maths class, we will revise our chapter first, that is the number system. So, in number system, firstly, we will read about the numbers, and the very first number is natural number. Natural numbers are denoted by capital N, and natural numbers are the numbers, means counting numbers, are known as the natural numbers and represented by capital N. After that, counting numbers we start from 1, means 1, 2, 3, 4 and so on. These numbers are known as natural numbers. Then we will read about the whole numbers. In whole numbers, when we include 0 to these numbers, because 0 we cannot count in counting numbers, so when we include 0 to the natural numbers, then we get the set of natural whole numbers, and whole numbers are represented by the capital W. After that, integers are there. In integers, from 0 and these all are positive numbers. If we take some negative numbers with these, means so on, -3, -2, -1, then 0, 1, 2, 3 and so on. This set of numbers is known as the integers, and integers are represented by capital I or capital Z. Okay, after that we will read about the rational numbers, and the rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of P upon Q. Rational numbers, the numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0. Okay, so and the numbers other than rational numbers are known as the irrational number. Irrational number के लिए आया आपके लिए, then we will say irrational numbers are the numbers which cannot be expressed in the form of P upon Q. Those numbers are known as irrational numbers. Okay, after that, the set of rational and irrational numbers are known as the real number. Rational and irrational, the set of both the numbers known as the real number, right? So in this chapter we will read some questions we will revise today. In first example, he say, are the following statements true or false? Give reasons for your answer. He say, every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. Yes, it's true. In first way you will say, yes, it's true. Every whole number is natural number. Firstly you will see, yes, it's true. But see, whole numbers we will start from 1, 2, 3 and this one. And natural numbers we start from 1, 2, 3 and so on. See, when we take only 0, rest are natural numbers, but when we take 0 and 0 is not included in natural numbers, so it's totally false. Next one, every integer is a rational number. Every integer is
rational number. So see, integers, you know the negative numbers, positive numbers and zero are the integers. Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of p upon q. So here every integer we can write in the form of p upon q, means we can write minus 3 upon 1, because 1 is a denominator of each and every number, so we can say every integer is a rational number. It's true. After that he say every rational number is an integer. It's not true, because integer is in the form of this one and rational numbers is in the form of p upon q. Yes, we can say minus 2 and minus 3 both are rational numbers and both are integers, but if we take minus 2 upon 3, then it is a rational number but not integer. Okay, so it's also false. After that, our second number example is find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2 both are rational numbers and we have to find the 5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2. We have to write 5 rational numbers. So we will take 1 upon 1 and 2 upon 1. We take the denominator. Then 1 upon 1 can be written as multiply by 10, multiply by 10. It will be 10 upon 10. And 2 upon 1 can be written as 2 multiply 10 upon 1 multiply 10. It will be 20 upon 10. Okay. Now denominator is same 10 and 10. So we will write after 10 11 upon 10, 12 upon 10, 13 upon 10. मीन्स 11 से और 19 तक आप कोई भी 5 नंबर्स राइट डाउन कर दीजिए. इसने आपको 5 नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला है. ओके. एक इसका अनदर वे होता है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का, जिसको मीन मेथड बोलते हैं. मीन में क्या होता है कि आप 2 रैशनल नंबर्स लेंगे, उनका सम करेंगे, उनका हाफ करेंगे तो उनके मिडल का नंबर आ जाएगा. दैट विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर. सी फर्स्ट नंबर आएगा हाफ ऑफ 1 प्लस 2, दैट इज हाफ ऑफ 3 अपॉन 2. तो 1 नंबर तो आ गया 3 अपॉन 2. अब जो नंबर्स हैं 1, 3 अपॉन 2 एंड 2, ये सेट आ गया अपने पास रैशनल नंबर्स का. तो आप इन 2 के मिडल का फाइंड आउट करोगे तो वो भी 1 और 2 के मिडल का रहेगा. मीन्स हाफ ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन 2, देन हाफ इंटू 2 एलसीएम 2 प्लस 3 मीन्स हाफ इंटू 5 अपॉन 2. इट विल बी 5 अपॉन 4. ओके. So again we will take 5 upon 4 and any other rational number, and in the same way we will find the rational numbers between given rational numbers. Okay. In second, next in exercise questions, he say is 0 a rational number? Can you write it in the form p upon q where p and q are integers and q not is equal to 0? So आपसे पूछते हैं कि 0 रैशनल नंबर है क्या, तो यू विल राइट यस 0 is a rational number and we can write 0 in the form p upon q. Yes, 0 is a rational number and we can write 0 as 0 upon 1 where 0 and 1 are integers. Okay. And 0 not equal to 1, डिनोमिनेटर 1 इसका 1 नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 के बिटवीन आपसे 6 रैशनल नंबर से फाइंड आउट करने को बोलते हैं. तो वही आप इसको 3 अपॉन 1 राइट डाउन करेंगे, 4 अपॉन 1 राइट डाउन करेंगे. इसको भी 10 से 100 से 1000 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. जैसे कि आ जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 10 30 अपॉन 10 और 4 अपॉन 1 1 मल्टीप्लाई 10 4 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 40 अपॉन 10. ओके. तो अब 30 और 40 के मिडल के नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं इजीली. उसके बाद आपके पास आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन. अभी तक तो आपने 3 और 4 देखे, मीन्स इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स जो दे देगा उनके मिडल के आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे. अभी आपको 2 रैशनल नंबर्स देगा और उनके नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है. मतलब 3 अपॉन 5 एंड
4/5। इनके मिडल के 5 रेशनल नंबर से फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वेरी फर्स्ट तो क्या होता है, जब डिनोमिनेटर अलग होता है इनका, तो इनको हम सेम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं, इनके एल्शियम लेके सेम डिनोमिनेटर बनाते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आपके हैं सेम, ऑलरेडी सेम गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और उनके मिडल के नंबर से राइट डाउन करने हैं, जिसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। ये आएगा 30/50, इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे 3/5 भी रेशनल नंबर था, 30/5 भी था। 30/5 की जो रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी वो 3/5 आती है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। एंड 4/5 कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 40/50। ओके, अब आपको 30 और 40 के मिडल के नंबर्स राइट डाउन करने हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। मीन्स कोई भी 5 नंबर्स राइट डाउन करने हैं और उनका डिनोमिनेटर आपको 50 लेना है, ये इनके मिडल के रेशनल नंबर्स आएंगे। ओके, उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई ट्रू फॉल्स बताना और रीजन देना आपको। आपसे कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इसके लिए आप ट्रू और फॉल्स क्या आंसर देंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस इट्स ए ट्रू। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, साथ में 0 और है। सो ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर कैन बी कॉल्ड एज इट इज होल नंबर। नेक्स्ट में बोलते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब एवरी इंटीजर के लिए बोलते हैं, इंटीजर्स आपके -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होते हैं, और आपके होल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स रह गए वो तो आपके होल नंबर्स नहीं है, सो वी कांट से एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट बोलता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो वही है। एवरी रेशनल नंबर को आप इंटीजर बोलेंगे तो भी फॉल्स है, एवरी रेशनल नंबर को आप होल नंबर बोलेंगे तो भी आपका फॉल्स है। दिस ऑल्सो वी कांट से। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, इसका रिवीजन है। उसके बाद आपके पास आता है हाउ यू विल रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। सपोज रेशनल नंबर की बात आती है, तो रेशनल नंबर तो आप इजीली एक्सप्रेस कर देंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। वो आपसे कहता है कि आप 3/2 एक्सप्रेस कीजिए नंबर लाइन पे। तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो 0 ले लेंगे, इधर आप नेगेटिव नंबर शो कर देंगे -1। ठीक है, इस साइड में आपको क्या लेना है, 1 2 3 4 मीन्स नंबर्स लीजिए आप और सबके डिनोमिनेटर का 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर यहाँ पे चाहिए, तो 2 डिनोमिनेटर रख दीजिए सबका। ठीक है, तो ये तो 1/2 रह गया, ये 2/2 1 रह गया, ये 4/2 2 रह गया, 3/2 अपने को रिप्रेजेंट करना था तो ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे ये करते हैं कि ये पहले ये नंबर लाइन लिया, ये 0 यहाँ पे 1 लिया, फिर इसके पार्ट्स बनाते हैं, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इक्वल पार्ट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। सो आप इन दिस वे आप इक्वल पार्ट्स लीजिए, नंबरिंग कीजिए और उन पे डिनोमिनेटर रखिए, जो गिवन डिनोमिनेटर है वो, वहाँ से जो होल नंबर्स आते हैं जो, उनको तो आप राइट डाउन कर दीजिए कि ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो रेशनल नंबर्स आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे। सो दिस विल बी द रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद सपोज आपके पास रेशनल नंबर आपसे दे देता है वो 5 and 3/2। तो इसमें भी क्या करते हैं, जैसे 5 कंप्लीट ले लिए, उसके बाद 3/2 रिप्रेजेंट किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये आएगा 13/2। अब अपने पास वही सेम क्वेश्चन आ गया, आप नंबर लाइन लेंगे 0, ये नेगेटिव रह जाएगा, इधर आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। सबका डिनोमिनेटर आपको 2 रखना है। इसका डिनोमिनेटर 2 रखोगे, इसका 2 रखोगे तो ये 1 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ आ गया 4, 5, 6, 7 और यहाँ आगे आपको लेने की नीड नहीं है, यहीं तक ले लीजिए। आपको 13/2 रिप्रेजेंट करना था तो ये आपका 13/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये जो पार्ट्स कट करते हैं ये आप कंपास से इक्वल पार्ट्स कट करें। ओके, सो इस वे में आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इस वे में आप नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को। मान लीजिए इरेशनल नंबर की फॉर्म में आता है, आपसे कहता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो इसके लिए वेरी फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, आप नंबर लाइन लेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, आपको क्या लेना है 1, 0 से 1। आप इसको नेम देंगे ए, इसको नेम देंगे बी। बी पे आप 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। ओके, और जितना ये यूनिट है, ये डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है, उसके इक्वल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आप कट करेंगे 1 यूनिट। राइट, इसको आप सी नेम दीजिए, ओ से सी को ज्वाइन कर दीजिए। अब जो ओ सी आएगा आपका, ये 90 डिग्री है, ओ सी आएगा वो √2 आता है। ओके, अपने पास √2 डिस्टेंस रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे आप ए बी सी ट्रायंगल में, राइट एंगल एट बी पे, तो जो ओ सी आएगा वो हाइपोटेन्यूस आएगा और वो √2 आता है। अब यहाँ कंपास रखेंगे, इतना ओपन करेंगे और आप कट करेंगे, जहाँ नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करता है आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इट्स √2। ओके, अब सपोज इसी में √2 के प्लेस पे वो √3 दे देता है, तो √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। √3 √3 के लिए करेंगे हम नंबर लाइन। ओके, और नंबर लाइन के बाद आप करेंगे कि ये तो आपका 0 रह गया, ये आपका 1 रह गया, ये आपका 2 रह गया। आप वही इसको ए नेम देंगे, इसको बी देंगे और 1 पे वही बी पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर देना है। जितना 1 यूनिट डिस्टेंस है उतना यहाँ कट करेंगे सी, मीन्स √2 के जितना प्रोसेस तो आपको सेम करना है √2। ठीक है, उसके बाद जो ओ सी आता है, ओ सी, इस पे आप 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे सी पॉइंट पे, ओ सी के साथ में, और इसको भी आप सेम 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे कट करेंगे। ये भी 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। ओ डी को आप जब ज्वाइन करोगे तो ये जो ट्रायंगल आती है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ओ डी आपको √3 मिलता है। ठीक है, सी आप ओ डी का स्क्वायर रखेंगे, ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओ सी आपके पास √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ओ डी स्क्वायर आपके पास आ जाता है 2 + 1, तो ओ डी आ गया 3 एंड इट्स रूट। तो ओ डी आपके पास √3 आता है। यहाँ आप कंपास रखेंगे, इतना ओपन करेंगे और आगे कट करेंगे, तो ये आपको नंबर लाइन पे जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको आप बताएंगे इट इज √3। ओके, सो ये √3। ऐसे ही √5 का टर्म आता है, तो √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। √5 ये 0, यहाँ पे हमने लिया 1, यहाँ पे लिया 2 और यहाँ पे लिया 3। √5 के लिए जो प्रोसेस हमारा चल रहा था उससे हम चलते एक स्टेप और चलते तो अपने पास √4 आता, मीन्स 2 हो जाता, फिर आप 1 यूनिट लेते, फिर √5 आता। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इसको ए नेम देना है, इसको बी नेम देना है। आपको अब 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे ले लेनी है। राइट, इस 2 यूनिट डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको बी पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना है। यहाँ पे जब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करोगे आप, तो आप 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से कट करना है, इक्वल टू नहीं, 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से कट करेंगे और इसको सी नेम दे देंगे। ठीक है, अब ओ सी को आप ज्वाइन कीजिए, ये 1 यूनिट डिस्टेंस, ये 2 यूनिट डिस्टेंस, तो जो ओ सी रहेगा वो आपके पास √5 आता है। 2 स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 4 and 1 5 और 5 इट्स रूट।
अब यहाँ से यहाँ कंपास ओपन करेंगे और इसको कट करेंगे तो ये √5 नंबर लाइन पे आ जाएगी। ओके, सो इन दिस वे यू विल रिप्रेजेंट द गिवन नंबर से ऑन नंबर लाइन रैशनल एंड इरेशनल। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएंगे और डेसिमल एक्सप्रेशन पूछते हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन से रिलेटेड आप देखिए, किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो आता है आपका टर्मिनेटिंग, और एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल्स में एक लिमिट हो जाती है कि इतने डिजिट्स के बाद डेसिमल आना है और वो फिक्स हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में हम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फिक्स नहीं कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग में सपोज 5.123 तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि ये डेसिमल है 3 डिजिट्स के आफ्टर, ठीक है, तो वो टर्मिनेट हो गया। और इन अदर वर्ड्स, इन टर्मिनेटिंग decimal expression, when we express these in the form of p upon q, then the denominator will be either 10 or the power of 10। जब इनको आप p upon q फॉर्म में डेसिमल रिमूव करके आपको p upon q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 की फॉर्म में मिलेगा या पावर ऑफ 10 की फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो ये तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक नंबर्स आते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है डेसिमल के बाद कि हम फिक्स नहीं कर सकते कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे सपोज आपने ये लिया 3.213213213 और ये कंटिन्यू चल रहा है, कोई लिमिट नहीं है कि कितने डिजिट्स के बाद एंड होगा, तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसे भी होते हैं 3.01001 001 and so on in this way, means we can't say after these digits decimal is there, that is known as non-terminating number। non-terminating numbers में 2 types आते हैं, एक आता है repeating और एक आता है नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होते हैं वो तो क्या होता है कि ग्रुप या एक डिजिट और रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, उसी पे नंबर जो डिवाइड करते हैं तो उसी पे डिवाइड जाता रहता है और वही नंबर आता रहता है। नॉन रिपीटिंग में होता है कि इसमें रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया तो 213 रिपीट होते हैं, तो इस नंबर को हम रख सकते हैं 3.213 एंड इट्स बार लगा देते हैं कि ये जो एक ग्रुप बनता है इन डिजिट्स का ये रिपीट होता है। और अदरवाइज 3.3333 ऐसे मीन्स इसको हम रख सकते हैं 0.3 एंड इट्स बार। तो ये होता है रिपीटिंग कि रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि नंबर से रिपीट नहीं होते हैं, उनका एक अलग ही डिवाइड चलता है, हम एक फिक्स नहीं, उनका एक ग्रुप बना के या हम बार लगा के भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे यह है 4.101001001 मीन्स 0 बढ़ता जाता है और ये डिवाइड कंटिन्यू रहता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग भी बोलते हैं इनको, नॉन रिपीटिंग। एक्चुअल तो ये जो नंबर्स होते हैं यही इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में रिपीटिंग नंबर्स आते हैं उनको तो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इनको हम कभी भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कि टर्मिनेटिंग में हम ये कहें कि कभी भी जब किसी नंबर पे हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक टाइम पे जाके वो रिमाइंडर 0 आ जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी 0 नहीं आता है, वो डिवाइड कंटिन्यू रहता है, ठीक है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में बस 2 टाइप्स होते हैं, या तो वो डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं या उनका ग्रुप बन के एक रिपीट होता रहता है,
और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में ये डिजिट्स ना तो रिपीट होते हैं ना ही डिवाइड एंड होते हैं कभी भी। अब जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन देता है आपसे शो दैट 3.142 678, ये आपको शो करना है इज ए रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसको आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, या हम ये कहें कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है, मीन्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ से आपने को कुछ नहीं करना है, ये डेसिमल रिमूव करना है। जैसे 3 1 4 2 6 7 8 है, डेसिमल के प्लेस पे आपको 1 रख देना। उसके बाद डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस लगा दें आप, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्म हो गई आपकी पी अपॉन क्यू फॉर्म, और पी अपॉन क्यू फॉर्म में जब एक्सप्रेस हो गया तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगेन इसके आगे आता है, ये तो थे टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, तो इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी थी। आगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है जैसे 0.333 मीन्स कैन बी रिटन एज 0.3 एंड इट्स बार। ये कहते हैं कि सो दैट दिस इज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। इसको आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वेरी फर्स्ट इसके लिए जो मेथड है हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड दिस वन। ओके, जब आपको डिजिट्स देखने डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट रिपीट होता है तो इट मीन्स 1 के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ऑन। तो ये आप लेंगे तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए अब मान लीजिए कि आपके पास ये एक नंबर है, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 1 डिजिट है डेसिमल का ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मीन्स ये आ जाता है आप इनका प्रोडक्ट। तो सेम वे से यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 था तो 1 3 इधर रिड्यूस हो शिफ्ट हो जाएगा और 3.333 और ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब इसको आप 10x एज इट इज रखिए। एक तो होता है कि भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है ये, या फिर होता है कि इसको हम डिवाइड कर दें कि इसको 3 प्लस 0.333 और इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसको रखिए 10x, ये 3 प्लस इसके प्लेस पे आप x रख सकते हैं बिकॉज ये इसके इक्वल था x के। तो यहाँ पे आपके पास जब x इधर लेंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा, मीन्स 9x जो है वो 3 आ गया, और आपका x आ गया 3/9, दैट्स x विल बी 1/3। ओके, और 1/3 आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। 1 और 3 इंटीजर्स हैं, और जो q है 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जैसे इक्वेशन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देता है एक्सप्रेस 1.27 एंड दिस वे मीन्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1.27 एंड 27 पे बार। सो यहाँ पे हम लेंगे लेट, इसको भी आपको पी अपन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। फिर आपके पास यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास 2 डिजिट्स का ग्रुप बनता है, तो यहाँ आपको क्या करना है, उन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ गया आपके पास है 100x, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट्स राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी, और ये आएगा 127.272727 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ आप इसको तो 100x एज इट इज रखेंगे, ये आता है 127, तो आपको इसमें से 1.272727 ये अलग करना है,
तो यहाँ पे आप रखेंगे इसको 126 प्लस 1.272727 एंड सो ऑन। जब इनको ऐड करो तो 127.27 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका ये 100x, ये 126 प्लस इसके प्लेस पे आप x रख सकते हैं, ठीक है। इसके प्लेस पे आप x रख देंगे बिकॉज x इज इक्वल टू 1.27 एंड 27 पे बार। यहाँ ये तो 100x हो गया, x को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का x और ये आ जाएगा 126, मीन्स 99x आता है आपके पास 126, तो x आ जाएगा 126/99। ये रिड्यूस होता है तो कर दीजिए, 3 से रिड्यूस होता है, ये 3 4 जा और 3 2 जा, और ये आता है 3 3 जा 3 3 जा और 3 11 और 3 1 3 4 जा, तो 14/11 जो है ये आता है आपका P/Q फॉर्म। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, सो आज के लिए आप इन नंबर्स को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ तक का आप रिवीजन करें, 1.3 एक्सरसाइज तक आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ तक आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज रहेंगी उनको हम रिवाइज करेंगे। थैंक्स।